السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا پہنچنے کے بعد کے واقعات کیا ان کے ساتھ پیش آئے، اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں طرف مڑ کر تھوڑا سا چلے تھے کہ ہور کے سپاہیوں نے آ کر روک دیا اور کہا بس یہیں اتر پڑیے، نہر فرات یہاں سے دور نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام کربلا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اچھا تو یہ کربلا کی منزل ہے۔ یہ کہہ کر حضرت امام حسین گھوڑے سے اتر پڑے اور پھر آپ نے فرمایا یہ کربلا ہے، یہی ہمارے رکنے کی جگہ ہے اور ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ اور ہمارے ساتھیوں کے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ یہ محرم 61 ہجری 2 تاریخ بروز جمعرات 20 اکتوبر سن 681 عیسوی کا دن تھا، جب ہور نے ابن زیاد کے خط کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا تو اس نے ابن زیاد کو اس کی جانکاری دی۔ یہ وہ وقت تھا جب ملک ایران میں کردوں نے بغاوت کر دی تھی۔ اس وقت بغاوت کو روکنے کے لیے ابن زیاد نے مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمرو بن سعد کو 4000 فوج کا سردار بنا کر اور رے کی حکومت کا پروانہ لکھ کر روانہ کر دیا تھا۔ ابن سعد اپنی فوج کے ساتھ نکل کر مقام حمان عیون تک ہی پہنچا تھا کہ ابن زیاد نے اسے واپس بلا کر حکم دیا کہ پہلے حسین کی جو مہم درپیش ہوئی ہے اسے حل کرو، اس کے بعد ایران کی طرف روانہ ہونا۔ عمرو ابن سعد ایک صحابی کا بیٹا تھا، اس نسبت سے وہ خوب جانتا تھا کہ امام حسین نواسۂ رسول ہیں اور ان سے جنگ کرنا گویا اپنے آپ کو آتش جہنم میں ڈالنا ہوگا۔ اس لیے اس نے ابن زیاد سے کہا مجھے اس کام سے الگ کر دیجئے تو بہتر ہوگا۔ ابن زیاد نے کہا اگر حسین کے مقابلے کے لیے نہیں جاتے ہو تو رے کی حکومت کا پروانہ جو تمہارے نام لکھا گیا ہے اسے واپس کر دو۔ ابن سعد نے اس معاملے پر غور کرنے کے لیے 1 دن کی مہلت مانگی، پھر آخر میں دنیاوی حکومت کے لالچ میں ابن سعد امام علی مقام سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا اور وہی 4000 کا لشکر جو ملک ایران کے لیے اسے ملا تھا اسے ساتھ لے کر 3 محرم کو کربلا پہنچا، یہاں تک کہ ابن سعد کے پاس 22000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ ابن سعد نے کربلا پہنچ کر عروہ بن قیس کو حکم دیا کہ وہ حضرت امام حسین کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ کس مقصد سے یہاں آئے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ عروہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے خط لکھ کر حضرت امام حسین کو کوفہ بلایا تھا، اس لیے اسے شرم محسوس ہوئی، اس نے یہ کام کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے منع کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کے سپرد یہ کام دیا گیا، لیکن ان میں سے ہر شخص حضرت امام حسین کو بلانے والوں میں شامل تھا، اس لیے کوئی بھی آپ کے پاس جانے پر آمادہ نہ ہوا۔ آخرکار عمرو بن سعد نے قرہ بن سفیان حنظلی کو آپ کے پاس بھیجنے کے لیے تیار کر لیا اور اس سے کہا کہ تم صرف امام حسین سے یہ پوچھنا یہاں آنے کا آپ کا مقصد کیا ہے۔ قرہ بن سفیان حضرت امام حسین کے پاس آیا اور یہی سوال کیا۔ حضرت امام حسین نے اس سے فرمایا تمہارے شہر والوں نے ایک کے بعد ایک خط لکھ کر مجھے بلایا ہے، اب اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ جب عمرو بن سعد کو حضرت امام علی مقام کا یہ جواب ملا تو اس نے اپنا سوال اور امام علی مقام کا جواب لکھ کر ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ جب یہ خط ابن زیاد کے پاس پہنچا اور ابن زیاد نے پڑھا تو اس نے غرور اور تکبر اور ظلم و سفاکی کے جذبے کے تحت اس نے یہ کہا اب جبکہ ہمارے پنجوں نے اسے جکڑ لیا ہے تو وہ نکلنا چاہتا ہے، حالانکہ اب کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ابن زیاد نے ابن سعد کو خط میں جواب لکھا تمہارا خط ملا، تم نے جو کچھ تحریر کیا ہے میں اسے اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، تم حسین اور ان کے تمام ساتھیوں سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کرے، اگر وہ بیعت کر لیں تو اس کے بعد ہم جو مناسب سمجھیں گے وہ کریں گے۔ ابن سعد کو جب یہ خط ملا تو اس نے کہا میں سمجھ گیا کہ ابن زیاد کو عافیت اور امن منظور نہیں۔ 7 محرم کو ابن زیاد کا دوسرا خط عمرو بن سعد کے پاس پہنچا
जिस में ये हुक्म लिखा हुआ था कि हुसैन और उनके साथियों पर पानी बंद कर दो, इस तरह कि उन्हें एक कतरा भी पानी का ना मिल पाए। उस खत को देखते ही अमरू बिन साद ने अमरू बिन हज्जाज जुबैदी को 500 सवारों की फौज के साथ नहर फुरात पर मुकर्रर कर दिया और ये हुक्म कर दिया कि हजरत हुसैन और उनके साथियों तक पानी का एक कतरा भी ना पहुंचने पाए। तारीखी किताबें इस बात की गवाह हैं कि इमाम हुसैन की शहादत से 3 दिन पहले पानी बंद कर दिया गया था। हजरत इमाम अली मकाम हरगिज़ इस बात को पसंद नहीं फरमाते थे कि मुसलमानों के दरमियान खूनरेज़ी हो और उसका धब्बा मेरे ऊपर लगाया जाए, इसलिए आपने दोबारा खुद अपनी जानिब से सुलह की गुफ्तगू का आगाज़ फरमाया और उमरू बिन कुर्जा बिन काब अंसारी के ज़रिए इब्ने साद को ये पैगाम भेजा कि आज रात हम तुमसे मिलना चाहते हैं। इब्ने साद ने यह बात मान ली और रात के वक्त 20 सवारों के साथ लश्कर इमाम हुसैन के सामने आया। हजरत इमाम हुसैन भी इतने ही साथियों के साथ तशरीफ लाए, मगर जब आप करीब पहुंचे तो हजरत इमाम हुसैन ने अपने साथियों को अलग हटा दिया। उसके बाद इब्ने साद ने भी अपने साथियों को अलग हटने का हुक्म दे दिया। दोनों में काफ़ी रात तक बात होती रही जिसको किसी ने नहीं सुना। फिर दोनों अपने अपने साथियों के साथ अपने अपने खेमों में आ गए। इस गुफ्तगू के मुताल्लिक किसी को सही इल्म नहीं है कि ये बात क्या हुई थी, लेकिन एक रिवायत के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे इस वसी व अरीज ज़मीन में से किसी तरफ निकल जाने दो, मैं देखूंगा कि अंजाम क्या होता है। उसके अलावा उकबा बिन समआन का बयान भी है कि मैं मदीने से मक्का और मक्का से इराक तक बराबर हजरत इमाम हुसैन के साथ रहा, शहादत तक उनसे जुदा नहीं हुआ, मगर हजरत इमाम हुसैन ने मदीने में, मक्का में, रास्ता में, इराक में, लश्करगाह में गर्ज शहादत तक कभी भी किसी गुफ्तगू में कोई ऐसा ख्याल जाहिर नहीं फरमाया जिससे ये मालूम होता है कि आप यजीद के हाथ में हाथ देने या किसी सरहदी मकाम पर बस जाने के लिए आमादा थे। आपने हमेशा यही फरमाया कि मुझे इस वसी व अरीज ज़मीन में से किसी तरफ निकल जाने दो, अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है और मैं उस वक्त तक वहाँ रहूँगा जब तक लोग कोई फैसला ना कर लें। हज़रत इमाम हुसैन से मुलाकात करने के बाद इब्ने साद को ये कहना पड़ा कि आप सुलह के रास्ते पर गामजन हैं। उसने बहुत खुश होकर इब्ने ज़ियाद को ख़त लिखा और हज़रत इमाम हुसैन की इस शर्त मसालियत से इत्तला दी। इब्ने साद का ये ख़त जब इब्ने ज़ियाद के पास पहुँचा तो ये ख़त पढ़कर इब्ने ज़ियाद ने कहा, यह ख़त ऐसे शख्स का है जो अपने अमीर का खैर ख्वाह और अपनी कौम पर मेहरबान है। अच्छा, मैं इस तजवीज़ को कबूल करता हूँ। ये सुनकर बदबख्त शमरजील जोशन खड़ा हुआ और कहा, आप ये बात उनकी कबूल कर रहे हैं जबकि वो आपके कब्ज़े में आ चुके हैं। अगर हुसैन हाथ से निकल गए और हुसैन ने आपकी इताअत कबूल न की तो वो आगे चलकर ज़रूर ताकत हासिल कर लेंगे और आप कमज़ोर हो जाएंगे। मेरी राय में तो आप उन्हें ये ताकत हासिल करने का मौका ना दें, बल्कि आप उन्हें हुक्म दे कि वो और उनके साथी अपने आप को हमारे हवाले कर दें। इस सूरत में अगर आप उन्हें सज़ा देंगे तो सज़ा देना आपका हक होगा और अगर माफ़ कर देंगे तो इसका भी आपको इख्तियार है। मुझे तो मालूम हुआ है कि हुसैन और इब्ने साद दोनों लश्करों के दरमियान रात रात भर बैठे बातें किया करते हैं। शिमर खबीस की लालची बातों से इब्ने ज़ियाद की राय बदल गई। उसने कहा, ए शिमर, तुमने अच्छी राय दी है। और फिर इब्ने साद को ख़त लिखा कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम हुसैन को बचाने की फ़िक्र करो और सिफारशी बनकर उनकी सलामती चाहो। देखो, अगर हुसैन और उनके साथी मेरे हुक्म के सामने सर झुकाएं तो उनको मेरे पास भेज दो और अगर वो इनकार करें तो उन पर हमला कर दो। उनके सर काटकर मेरे पास रवाना करो और हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाकर रौंद डालो, इसलिए कि वो इसी के मुस्तहिक हैं। अगर तुमने हमारे हुक्म की तामील की तो हम तुम्हें कीमती इनामात से नवाजेंगे और अगर तुम्हें ये मंजूर ना हो तो हमारा लश्कर शिमर के हवाले कर दो और ख़ुद अलग हो जाओ। जब शिमर ने इब्ने ज़ियाद का ख़त अमरू बिन साद को लाकर दिया और जब अमरू बिन साद ने यह ख़त पढ़ा और पढ़कर कहा, खुदा तुझे गारत करे, तू मेरे पास ये क्या लाया है? मैं समझता हूँ कि तूने ही इब्ने ज़ियाद को मेरे मशवरे पर अमल करने से रोक दिया और इस बात को बिगाड़ दिया जिसके बन जाने की उम्मीद थी।
खुदा की कसम, हुसैन कभी इब्ने ज़ियाद के सामने नहीं झुकेंगे। उनके पहलू में एक खुददार दिल है। शिमर ने कहा, इन बातों को जाने दो, ये बताओ अब क्या करोगे? अमीर के हुक्म की तामील करके उनके दुश्मनों को कत्ल करोगे या लश्कर मेरे हवाले करोगे? इब्ने साद दुनिया पर जान देने वाला और रय की हुकूमत का मुतमईन था। इब्ने साद ने कहा, मैं लश्कर तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, बल्कि ये मुहिम मैं खुद हल कर लूंगा। तुम पैदल फौज की निगरानी करो। 9 मुहर्रम को बरोज जुमेरात के वक्त इब्ने साद ने अपने साथियों को हमला करने का हुक्म दिया। उस वक्त हजरत इमाम अली मकाम अपने खेमे के दरवाजे पर तलवार का सहारा लेकर घुटनों पर सर रखे बैठे थे कि आपकी आंखें लग गईं। अचानक फौज के शोर की आवाज़ सुनकर आपकी बहन हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे के पास आईं और इमाम अली मकाम को देखकर फरमाया, देखिए दुश्मन की फौज की आवाज़ बहुत नज़दीक से आ रही है। हज़रत इमाम हुसैन ने सर उठाया और फरमाया, मैंने अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। हुजूर ने फरमाया, तुम अनकरीब हमारे पास आने वाले हो। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सुनकर रोते हुए कहा, हाय मुसीबत। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए। सब्र करो और खामोश रहो। अभी ये बातचीत हो ही रही थी कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर इत्तला दी कि फ़ौज ने हमला कर दिया है। ये सुनकर हज़रत इमाम अली मकाम अपनी जगह से उठे और फ़ौज काफिर की तरफ जाने लगे तो हज़रत अब्बास ने कहा, नहीं आप नहीं, मैं जाता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, मगर ये पूछ लेना कि इस वक्त हमले का सबब क्या है। हज़रत अब्बास यजीदी फ़ौज के सामने आए और उनसे पूछा कि इस वक्त हमले का सबब क्या है। तो यजीदी फ़ौज ने जवाब दिया, इब्ने ज़ियाद का हुक्म है कि आप लोग उसकी इताअत करो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत अब्बास ने कहा, ज़रा ठहरो, जल्दी ना करो, मैं इब्ने रसूलुल्लाह को तुम्हारे मकसद से आगाह करता हूँ। उन्होंने इमाम को इब्ने साद और उनके साथियों के मकसद से आगाह किया तो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, उन लोगों से कहो कि एक रात की मोहलत दें ताकि आज रात भर हम अच्छी तरह नमाज पढ़ लें, दुआएं मांग लें और तौबा व इस्तग़फ़ार कर लें। अल्लाह ताला खूब जानता है कि मुझको नमाज, दुआ और इस्तग़फ़ार से कितनी मोहब्बत है। हज़रत अब्बास ने जाकर इब्ने साद के दस्ते से कहा, हमें एक रात की मोहलत दो। इब्ने साद ने शिमर और दूसरे साथियों से पूछा तो सबने मोहलत की राय दी। इब्ने साद ने सब साथियों से मशवरा करने के बाद हज़रत अब्बास से कहा, हम लोगों ने तुम्हें कल तक की मोहलत दे दी है। ये कहकर इब्ने साद वापस चला गया। हज़रत इमाम अली मकाम ने अपने साथियों को जमा करके एक खुतबा दिया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए और आराम व तकलीफ़ हर हाल में उसका शुक्र है। ऐ अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने हमें अहले बैत को नबुव्वत की इज़्ज़त अता फरमाई, कुरान का इल्म अता फरमाया और दीन की समझ बूझ अता की, सुनने वाले कान, देखने वाली आँखें और दाना दिल की नेमतों से माला माल फरमाया। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं दुनिया में किसी के साथियों को अपने साथियों से ज़्यादा वफादार और बेहतर नहीं जानता और न किसी के घर वालों को अपने घर वालों से ज़्यादा नेकोकार और सिला रहमी करने वाला देखता हूँ। खुदाए बुजुर्ग व बरतर तुम सबको मेरी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। सुन लो, मैं यकीन रखता हूँ कि उन दुश्मनों के हाथों सुबह हमारी शहादत है, इसीलिए मैं तुम सबको खुशी से इजाज़त देता हूँ कि रात की तारीकी में जहाँ तुम लोगों का जी चाहे चले जाओ, मेरी तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं होगी। बिलाशुबा ये लोग मेरे ही कत्ल के लिए आए हैं और जब मुझे कत्ल कर देंगे तो किसी दूसरे को कत्ल नहीं करेंगे। इस खुतबा को सुनकर सबसे पहले हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, फिर आपके दूसरे भाइयों, बेटों, भतीजों और भांजों ने एक ज़ुबान होकर कहा, क्या हम सिर्फ इसलिए चले जाएं कि आपके बाद जिंदा रहें? खुदा हमें वो दिन ना दिखाए। इसके बाद इमाम अली मकाम ने ख़ास तौर से औलाद अकील की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया कि मुस्लिम की शहादत तुम्हारे लिए काफ़ी है, इसीलिए मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम चले जाओ। लेकिन भाइयों ने कहा, हम लोगों को क्या जवाब देंगे? क्या हम उन्हें ये कहेंगे कि हम अपने सरदार, अपने आका और बेहतरीन इब्न अम को दुश्मनों के पास छोड़ आए हैं? ना हमने उनके साथ मिलकर कोई तीर चलाया, ना नेज़ा मारा, ना तलवार का कोई वार किया,
اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا حشر کیا ہوا ہے؟ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی جانیں، اپنا مال اور اپنی اہل و عیال سب آپ پر قربان کر دیں گے، آپ کے ساتھ ہو کر آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے۔ اب جو انجام آپ کا ہوگا وہی انجام ہمارا ہوگا، خدا وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو۔ اس کے بعد اصحاب میں سے حضرت مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوئے اور کہا، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ یہ ہم سے ہرگز نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم میں دشمنوں سے نیزے کے ساتھ جنگ کروں گا، یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینوں میں ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد تلوار چلاؤں گا جب تک اس تلوار کا قبضہ میرے ہاتھ میں ٹھہر سکے۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس ہتھیار نہ ہوں گے تو میں پتھر مار مار کر دشمنوں سے لڑوں گا اور آپ پر اپنی جان نثار کر دوں گا۔ خدا کی قسم ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر لیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے نواسے کی کیسی حفاظت کی ہے۔